Hello students. So today in this video we are going to learn about what is present and past continuous tense, right? So present tense and past tense, and in both of them we are using the word tense. What is tense? Tense is something which tells us the time. Time of what? Time of action. कि कोई भी एक्शन कब हुआ. अगर वो अभी हो रहा है तो वो प्रेजेंट में हो रहा है. अगर वो कंप्लीट हो चुका है दैट मीन्स इट टुक प्लेस इन पास्ट. तो प्रेजेंट मीन्स अभी, वर्तमान समय, राइट नाउ. पास्ट मीन्स समथिंग which happened earlier, something which is now complete, the action is over, right? तो प्रेजेंट और पास्ट का मीनिंग तो आप समझ गए. नाउ व्हाट इज कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मीन्स वो एक्शन जो चलता हुआ हो, चल रहा हो, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग. So here what is the action? Eating is the action and it is going on, right? So it is in present continuous, right? And if I say I was eating, again action तो हो रहा है, eating, but it was happening in past. So there are some words which tell us about the action being done in present and there are some words which tell us कि action जो हुआ था वो past में हुआ था, right? तो इन दिस वीडियो फाइनली हम क्या जानने वाले हैं? प्रेजेंट और पास्ट में वो एक्शंस जो कंटिन्यूअस हों, जो चल रहे हों, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर. So in the next slide we have what is present continuous, right? Present continuous means action which is going on in present. Continuous means हो रहा है, it's happening, going on, right? और कब it is happening? It is happening in present, right? So as I told you, we use present continuous for actions happening right now. Actions are going on और कब going on? Going on right now, अभी, present में, right? So in sentences का structure कैसे होता है? In this we have subject which comes first. कि action कर कौन रहा है, right? It is followed by is, am, are. Is used with singular subject, am is used with I and are is used with plural subject. तो अगर कोई भी plural होगा subject like they, right? We. तो in that case what we will use? We will use are, we are, they are. और अगर singular है subject like he, she, it, ठीक है? तो in that case we will use is like he is, she is. और I की तो कोई टेंशन ही नहीं है. I का दोस्त है am. All the time जब भी I आएगा तो हम am ही यूज करेंगे for making a sentence in present continuous tense, right? For examples, I am eating an ice cream. She is playing with her doll. They are running in the park. तो all the three sentences, ये सब actions कब कब हो रहे हैं? Eating an ice cream, because am है तो क्या बता रहा है? It is happening in present continuous tense. She is again is telling that the sentence is in present continuous tense. और continuous किससे पता लगता है? जब हम action word में ing add कर देते हैं, right? So verb is, what is verb? Verb is action word. जो भी action हो रहा है, right? उसके साथ हम add on कर देते हैं ing. So she is playing with her doll. They are running in the park. So they is plural subject, right? और plural के साथ क्या use हुआ? Are. And what is the action here? Running is the action. So run plus ing, running. So here we can see they are running in the park. The action of running is happening in the park in present. So again it is telling that the sentence is in present continuous tense. The action is happening in present and the action is going on, right? It is not over. Moving on to past continuous. Now what is past continuous? We use past continuous for actions that were happening in the past for some time. ये actions हो रहे थे, है ना? The actions were going on. पर वो कब going on थे? अभी या past में? Yes, they were going on in past. ठीक है? मतलब ये actions हो रहे थे but अभी नहीं, past में, right? So इनका structure कैसे रहता है? For a sentence in past continuous tense, we use subject. Subject कौन होता है? Who is doing the action, right? Who is doing the
एक्शन। अब जो भी एक्शन कर रहा था वो कब कर रहा था, अगर प्रेजेंट में कर रहा होगा तो हम यूज करेंगे इज एम आर, बट क्योंकि एक्शन इज गोइंग ऑन इन पास्ट है ना, वी आर डिस्कसिंग पास्ट कंटिन्यूअस, तो जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा वी विल यूज was एंड और were, right? So who is doing the action? अगर singular है, the person who is doing the action is singular, then we will use was. अगर plural है ना, तो subject is plural, then we will use were. ठीक है? Now subject भी आ गया, who is doing the action, उसके साथ was या were भी add कर दिया, and finally we will add the verb. Verb is what I told you? Yes, it is action word. और verb के साथ हमें क्या add करना ही पड़ेगा? ing. It shows that the action is going on. Let's see the examples. I was eating ice cream yesterday. Yesterday क्या बता रहा है? कल, right? पिछला कल. I के साथ क्या यूज हुआ? Was. I क्या है? Singular. अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था I के साथ हमेशा am यूज होता है. Yes, I के साथ am ही यूज होता है, लेकिन present continuous tense में. And right now we are discussing past continuous tense, right? तो past continuous tense में I के साथ am का option नहीं है. I के साथ या तो हम was लगा सकते हैं या तो were लगा सकते हैं. And considering that I is singular, we are going to use was. I was eating ice cream. क्या था action word? Eat. Eat के साथ क्या add कर दिया हमने? ing. Eating ice cream yesterday. तो was भी हमें बता रहा था that the action is in past, है ना? And एक और word आ गया जिसने help की to identify the action was in past. The word is yesterday. Moving on to the next sentence. She was running in the park yesterday. She क्या है? Singular या plural? Very good. It is singular. और singular के साथ मैंने क्या बताया था? Was use होता है, right? And what's the action? Run. Run के साथ क्या add किया हमने? ing. Because the action is going on. And to show that the action is going on, हम क्या add करते थे? ing. Very good. So she was running in the park. और एक और word जिसने help किया to identify that the action is going on in the past. कौन सा word है वो? Yesterday. Very good. Moving on to the next sentence. Next is they were singing at the party. है ना? They were singing at the party. They. अब subject कौन है? They. They कौन है? Singular या plural? Yes, yes, yes. It is plural. And as I told you, plural के साथ हमेशा क्या use करेंगे हम? Were. है ना? So since it was plural, we used were. They were singing. What's the action? Action is to sing. और ing add किया to show that the action is going on. तो singing हो रहा है तो singing हो रही थी. They were singing. और कहाँ sing कर रहे थे? They were singing at the party. So which word is exactly telling us that the action took place in past? कि वो past में ही हो रहा था action? Were. The word were is showing that yes, the action took place in the past. Not exactly took place, it was going on in the past. Okay, let's see some more examples. For present continuous, he, we, cat. ये तीनों तो हो गए subject, तीनों sentences में, ठीक है? So he is drawing, है ना? तो he के साथ क्या use किया? Is. क्यों किया? Because it is singular. कौन है singular? He है singular. Singular के साथ we use is. And what's the action here? To draw is the action, and since it is going on, we have added ing. So the sentence is he is drawing. Next is we are dancing. So again subject मैंने बोला था ना we है, और जब subject we है जो कि है plural, तो plural के साथ हम क्या use करेंगे? are. और हमारा action क्या है? To dance. And to show कि dance हो रहा है, we will add ing, and the sentence becomes we are dancing. Very nice. The last one here is the cat. Now the subject is the cat. बता दीजिए one cat है या many? Yes, one cat. That means singular, है ना? अब singular है तो cat is. Singular के साथ क्या use करते हैं हम? Is. And the action is to sleep. And since it is going on, we have added ing. And the sentence is the cat is sleeping. Okay? I hope you've understood this. Let's go to more examples for past continuous tense. Let's see. Now he, we, again the cat.
अब ही है सब्जेक्ट, वी है सब्जेक्ट, द कैट इज सब्जेक्ट। ही क्या है? सिंगुलर। वी क्या है? प्लूरल। कैट क्या है? सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ हमने क्या डिस्कस किया था? वॉज। प्लूरल के साथ क्या आता है? वर। अब देख लेते हैं जो डिस्कस किया था वो एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ही वॉज, हो रहा है जी, हो रहा है। ही वॉज, व्हाट्स द एक्शन? टू ड्रॉ। एन ing लगा दिया तो एक्शन वॉज गोइंग ऑन। ही वॉज ड्रॉइंग yesterday. Yesterday means kal. So it's again telling that the action was going on in the past. Next is we were dancing last night. Okay, हमने डिस्कस किया था we के साथ were आता है और यहाँ पे we के साथ were ही आया because it is plural. Action is to dance and dancing हो गया because it is going on. And last night भी हमें क्या बता रहा है कि एक्शन पास्ट में हो रहा था। yesterday क्या बता रहा है? एक्शन पास्ट में हो रहा था। And the cat was, because singular है तो was आया, so it is also correct. The cat was sleeping in the afternoon. तो what was the action which was going on? Sleeping. और कब हो रही थी ये sleeping की activity? cat जी कब सो रही थी? In the afternoon, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस है जो है आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब आई है, आई के साथ प्रेजेंट में यस वी हैव ऑप्शन ऑफ एम, है ना? आई एम प्लेइंग, व्हाट इज द एक्शन? प्लेइंग क्रिकेट। एंड नाउ मीन्स अभी हो रहा है, तो क्लियर है। नाउ ने तो आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक्शन कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, तो सिंपल है, राइट? इसी को अगर हम पास्ट में देखें, आई के साथ क्या हो जाएगा? पास्ट में एम नहीं आ सकता पास्ट में, है ना? तो यहाँ पे आएगा वॉज। आई वॉज, एक्शन सेम रहेगा, प्लेइंग क्रिकेट, बट कब? yesterday. yesterday means कल, so that means it is past and at 5 o'clock। टाइम भी दे दिया इन्होंने कि भैया कल तो खेल रहे थे बट 5 o'clock को खेल रहे थे। अगेन इट इज इन पास्ट ओनली, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, प्रेजेंट में हमने यूज किया आई के साथ एम, पास्ट में यूज क्या किया? वी used was, है ना? So in present we have used am and in past we have used was. So sentence structure almost same रहा, बस हमने जो ये is, am, are की जगह was, were use कर लिया, right? और जो additional information है, जैसे इसने बता दिया अब now बता रहा था कि action is going on right now, अभी हो रहा है ना? और जो yesterday था यहाँ, इसने भी हेल्प कर दिया टू आइडेंटिफाई कि एक्शन कहाँ हो रहा था, कब हो रहा था? पास्ट में हो रहा था, कल हो रहा था, राइट? अब फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है? अब गेस करना है आपको। शी, अब ऑप्शन क्या है? इज या फिर वॉज, दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और शी सिंगुलर ही है ना? तो अब शी डैश स्लीपिंग नाउ, अब नाउ बता दीजिए प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट का? यस, प्रेजेंट की बात हो रही है ना? और प्रेजेंट होता है तो इज यूज होता है या वॉज? वेरी नाइस, इज ही यूज होता है, तो शी इज स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट इज दे, है ना? दे के साथ या तो आर आ सकता है या तो वर आ सकता है, परफेक्ट, दोनों करेक्ट है। अब आइडेंटिफाई करना था कि एक्शन कब हो रहा है, ठीक है? लेट्स आइडेंटिफाई। दे डैश प्लेइंग फुटबॉल, एक्शन है प्लेइंग फुटबॉल, है ना? कब खेल रहे थे? येस्टरडे। येस्टरडे कब की बात कर रहा है? पास्ट की जी। तो अगर पास्ट की बात हो रही थी तो हम आर यूज करेंगे या वर यूज करेंगे? वेरी नाइस, वी विल यूज वर। तो आर यहाँ पे हो गया रॉन्ग, वर हो गया करेक्ट। आई, अब बोलोगे मैम आई के साथ तो एम ही बोला था आपने। यस बोला था, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा, अगर पास्ट होगा तो क्या यूज होगा? वॉज होगा। तो लेट्स फाइंड आउट सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। आई डैश रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मीन्स अभी ही आई एम रीडिंग द बुक। तो क्या होगा? अगर अभी ही हो रहा है दैट मीन्स प्रेजेंट में हो रहा है एक्शन ऑफ रीडिंग अ बुक, तो व्हाट वी विल यूज? यस, आई एम रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट। वॉज तो पास्ट में यूज होता, राइट? नाउ नेक्स्ट, द लास्ट सेंटेंस हियर इज द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन प्लूरल है ना? तो हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। अब प्लूरल के साथ आर भी यूज होता है, वर भी यूज होता है, दोनों सही है भैया, इनमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। सिंगिंग, एक्शन है सिंगिंग। अब हो कब रही थी सिंगिंग? ये हो रही थी लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट अभी की बात है या कल की बात है? पास्ट की बात है। यस यस यस, वेरी गुड, ये बात है पास्ट की, है ना? तो द चिल्ड्रन, फिर करेक्ट क्या होगा? आर या वर?
Very nice. The children were singing last night. अब बहुत काम कर लिया चित्रा मैम ने, अब टर्न है आपकी. नाउ देयर इज दिस एक्टिविटी जिसमें क्या करना है आपको, 2 सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, 1 सेंटेंस इन प्रेजेंट और सेम सेंटेंस को अगर वो पास्ट में हो रहा होता तो. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें रिया को, राइट, इफ वी सी रिया, नाउ व्हाट इज रिया डूइंग राइट नाउ? रिया इज शेयरिंग कलर विद अंकित, है ना. तो अगर मैं प्रेजेंट में सेम सेंटेंस बोलूं, रिया is sharing color with अंकित, है ना. अब इसी को अगर हम पास्ट में कर देंगे चेंज, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. बट इफ आई चेंज इट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, देन इट विल बी रिया. और पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर है, रिया तो एक ही है बेचारी, है ना. तो रिया के साथ क्या यूज करेंगे? रिया वॉज, है ना. एक्शन सेम रहेगा, शेयरिंग कलर, है ना. और किसके साथ शेयरिंग कलर हो रहा था? विद अंकित, है ना. अब देख लो, 2 सेंटेंस बनाएंगे आप भी. फर्स्ट सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. सेकंड सेंटेंस रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में. ठीक है. और टू डू दिस एक्टिविटी आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है या प्लूरल है. उसके बाद सेंटेंस आप प्रेजेंट में बना रहे हैं या पास्ट में. अगर प्रेजेंट में बना रहे हैं तो इज एम आर का यूज करेंगे, राइट. और अगर पास्ट में बना रहे हैं तो वॉज वर का यूज करेंगे, राइट. सो आई एम होपिंग टू गेट सम ऑफ योर सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. कमेंट कीजिएगा, दोनों सेंटेंस बना के ही कीजिएगा. और कोशिश कीजिए उसके बाद अपनी नोटबुक के अंदर हर एक कैरेक्टर जो यहाँ मेंशन्ड है उसको यूज करके उसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस और पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस दोनों बनाएं, राइट. सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, right, so that you can make your sentences. All the best everyone. See you in the next video.